Okay, so we were discussing interference in the last class. So I want to just spend maybe 10-15 minutes and discuss the concept of coherence with you, okay, so that you have a little bit of understanding of, what do we mean by spatial and temporal coherence. So coherence is like a property of the wave or the source that you are using. So whatever source you have, the kind of wave it is producing can be an incoherent or a coherent light wave. But what is usually done is that we try to separate the concept of coherence into two categories. So we talk about spatial coherence and we talk about temporal coherence, because coherence as a principle is related with the phase of the wave fronts. Okay, so one simple example of thinking about a coherent wave is like this, that you can imagine a lot of waves are going in one direction. So if they maintain a constant phase difference between them, so this is the definition that we have always studied. Whenever somebody asks you that what is a coherent source, so we always say that two sources जिनके बीच का phase difference constant हो. Okay, so we say that they are coherent sources. That is the basic definition that we say about the coherence. So but coherence can be of two types. So we can talk about coherence in space, or we can talk about coherence in time. So when we discuss coherence in space, so we say spatial coherence. And when we are thinking about coherence in time, we say temporal coherence. Okay. So now, if you have watched the Republic Day parade or any other parade, and you have seen soldiers who are marching, okay. So there are going to be like a whole battalion of soldiers is marching, and if you will observe the motion of each individual soldier with respect to the other one, so you will see that row wise they would march in step. जो भी एक रो में soldiers होंगे, they are moving forward in step. In step का मतलब है they are moving forward in phase, right? So like that, they are moving forward in step. So this would be an example of a temporal coherence, that if the battalion does not change their position and they keep on moving forward in step, so each row is moving in step with respect to each other, and they are just moving forward. So this is like a temporal coherence. But if I would also sort of try to see that what the individual, maybe I should draw it. Okay, so what I want to say is that there are two ways you can see the soldiers. You can either see in a column that how they are marching in phase in column. So that is actually the temporal one in column, and the row is the spatial one. Because we can imagine कि जो मेरे पास जो ये soldiers है, they are, so I have 4 soldiers in soldiers is marching, so it's anyway coming forward, but all of them, उनके जो हाथ और पाँव हैं, अगर मैं रो को साइड से देखूंगी तो आई विल सी कि एक साथ उठ रहे हैं. So they are moving in phase even in row. But if I will try to look at the motion of soldiers in a column, okay, इस तरह के column में अगर मैं एक column में देखूंगी तो वहां पर भी उनके हाथ और पाँव एकदम मतलब they would be marching in step. So spatial coherence का ये सबसे crude example हो गया, that whenever I will pick some points in space, and if I can find such points which are always in phase, तो मैं space में कोई A, B, C 3 points choose कर लूँ, but if those 3 points are always moving forward in phase, उनके बीच का phase difference change नहीं हो रहा है, it's constant, but they are spatially separated. In time they are moving together, but they are spatially separated. Okay, so then that's a concept of a spatial coherence. So light ke respect mein, if you will look at this figure that I have
shared here. तो जो A part है उसमें this is my source. Okay, so this is my source S and it is emitting spherical wave fronts. तो ये wave front source से emit होके expand हो रही है and they are moving ahead in time. Okay, but if I consider some 3 points on one wavefront, so if I consider this wavefront and I pick these 3 points on this wavefront, तो मैं किसी भी टाइम के लिए मुझे पता है कि इन तीनों वेव फ्रंट्स के बीच में पॉइंट P1, नॉट 3 वेव फ्रंट, एक ही वेव फ्रंट पे जो 3 पॉइंट्स हैं P1, P2 एंड P3, इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी कांस्टेंट बिकॉज माय सोर्स इज एमिटिंग वेव फ्रंट्स एट अ कॉन्टिन्यूअस, उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रहा है. फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होगा इसमें कि ये नंबर ऑफ ये कितने वेव फ्रंट्स एमिट हो रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में. तो दिस इज कांस्टेंट. इट्स अ मोनोक्रोमैटिक सोर्स इन दैट सेंस. इसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रहा है. एंड दीज, और एक वेव फ्रंट का डेफिनेशन क्या होता है, वेव फ्रंट पे हमेशा फेज जो है कांस्टेंट होता है. तो P1, P2, P3 जैसे जैसे स्पेस में आगे जाते जाएंगे उनके बीच का फेज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, या फिर दे वुड ऑलवेज बी इन स्टेप और ऑलवेज बी इन फेज. So if I want to do some interference experiment using the points P1, P2, P3, so I can do something. matlab I can break a wavefront into 2 parts, so which is known as the division of the wavefront. तो इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट्स 2 तरह से होता है, या तो मैं डिविजन ऑफ वेवफ्रंट करती हूँ या मैं डिविजन ऑफ एम्पलीट्यूड करती हूँ. तो डिविजन ऑफ वेवफ्रंट डायरेक्टली स्पेशल कोहेरेंस को यूज करता है. तो एक वेव फ्रंट आ रहा है, उस वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स है दे विल ऑलवेज बी इन फेज बिकॉज दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अ वेव फ्रंट. ओके, सो दैट corresponds to a spatial coherence. And then I can break. Now what I can do is that this is my source and it is emitting these spherical wavefronts. So I know that any point I'll pick on this wavefront will always be in phase. So फिर हम क्या करते हैं, वी पुट 2 slits over here. गलत बना दिया slits. So we will put 2 slits like this, and when a wavefront is incident on these 2 slits, so अब जो इस slit के ऊपर जो भी wavefront fall हुआ उसके ऊपर जितने points थे they were in phase. So now this point of the wavefront which will pass through this slit will act as another source and this will act as another source. But now these 2 sources, if I say that this is my S1 and this is my S2, so these 2 sources will now act as coherent sources क्योंकि ये दोनों sources मैंने बनाए हैं एक wavefront को split करके. ठीक है, सो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्पेशल कोहेरेंस के ऊपर बेस्ड है एंड इट इज बेस्ड ऑन स्प्लिटिंग द वेव फ्रंट. सो you are basically dividing your wavefront and making 2 sources out of it. You can make n number of sources. ठीक है, you can try to interfere them. Diffraction grating जिसे हम study करते हैं, तो there are multiple diffraction grating में multiple slits होते हैं जो कि हम पढ़ेंगे बाद में. बट इंटरफेरेंस हम हमारे कोर्स में फिलहाल 2 स्लिट ही है तो हम वो ही करेंगे. तो spatial coherence इस तरह से imagine करते हैं. So whenever you are talking about spatial coherence or somebody talks about spatial coherence, so the easiest way to imagine is that think of a wavefront. So any point which will lie on this wavefront is going to be in phase, or any other type of setup is given to you जहाँ पर spatially separated है. वैसे तो कोई भी ऐसा natural और ordinary source apart from lasers नहीं हो सकता है जिसमें you can interfere 2 separate sources. Only with lasers you can they have मतलब people have shown that you can have 2 separate lasers and you can produce some kind of interference pattern between them. But interference as a phenomena is extremely sensitive about the coherence of the beam. तो जो 2 interfering source है, if they are not in phase or if they are not marching in phase or they are not marching together, so think of the 2 sources as soldiers. अगर वो soldiers एक साथ एक ही speed पे एक ही तरह से अपना hand और leg movement का coordination नहीं करेंगे, so the whole battalion
will not look that ordered. Okay, that order would break. So interference is extremely sensitive to the coherence of the source. इसीलिए it's difficult to observe it in real life. You would need a special setup to observe this, and you would need some kind of source S. You would need some kind of source which has some kind of spatial coherence. तो जो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट हुआ था, जो ग्रिमाल्डी ने किया था, तो his experiment failed because he was using sun as the source. तो सन के साथ क्या था, there was not इतना ज्यादा spatial coherence नहीं था बीम में, and so he could not observe the interference fringes. Then somebody else redid that experiment, and what that person did was, अगर यहाँ पर ग्रिमाल्डी ने ये सन का रेज लिया था and this wave front was coming, so what this person did was उसने यहाँ पर एक छोटा सा पिन होल लगा दिया, and पिन होल के बाद जो लाइट मिला वो in a way spatially filter हो गया, so he could maintain some kind of spatial coherence. And then मतलब कोई और नहीं था, यंग्स ही था, and यंग्स could show the interference pattern. तो पहले सबसे पहले ग्रिमाल्डी ने ट्राई किया था ये एक्सपेरिमेंट विद सनलाइट, बट ही कुडंट शो इट. सो बट यंग्स इंट्रोड्यूस्ड another small slit, and so he could maintain some kind of spatial coherence in the beam, and then he could show the interference fringes. So spatial coherence इस सेंस में हम सोचते हैं. और अगर मैं ये फिर से फिगर में वापस जाऊं, and if I look again at the figure A, तो यहाँ पर देर आर अदर पॉइंट्स ऑल्सो. सो यहाँ पर कुछ पॉइंट P1 डैश है, P2 डैश है, P3 डैश है, P4 डैश है. ओके, सो व्हाट आर दीज पॉइंट्स डिनोटिंग? दीज पॉइंट्स आर डिनोटिंग टेम्पोरल कोहेरेंस. सो व्हाट डू आई मीन इज कि अगर मुझे पता है कि P1 पे फेस का वैल्यू क्या था, एंड आई नो कि ये जो भी मैं सोर्स स्टडी कर रही हूँ, दिस सोर्स हैज एन एक्सट्रीमली लार्ज टेम्पोरल कोहेरेंस. बड़ी टेम्पोरल कोहेरेंस का मतलब है कि बहुत ज्यादा टाइम के लिए द बीम इज गोइंग टू मेंटेन अ मेजरेबल और अ क्वांटिफाइबल चेंज इन फेज. आई कैन कैलकुलेट कि उस वेव में कैसे फेज चेंज हो रहा है, वो मैं मेजर कर सकती हूँ फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम. अगर टेम्पोरल कोहेरेंस कम होगी तो बहुत ही छोटी ड्यूरेशन के लिए आई कैन से कि अच्छा, अगर मुझे पता है कि P1 पे फेस क्या था, तो P'2 पे फेस क्या होगा वो मैं निकाल पाऊंगी, बट मे बी फॉर अ वेरी मतलब शॉर्टली सेपरेटेड इवेंट्स इन टाइम. तो यहाँ पर ये जो डिफरेंट वेव फ्रंट्स हैं, दे आर एमिटेड एट डिफरेंट टाइम्स. ओके, सो यू कैन थिंक दैट पॉइंट P1 डैश, P2 डैश, P3 डैश, दे आर actually the wave fronts separated in time. Okay, so this line is showing the events separated in time. जैसे जैसे wave front emit हुआ वो expand होके दूर चला गया. So P'4 is the first wave front that was emitted, and P1 dash is the recent wave front. ठीक है, तो as they are separated in time, but a temporal coherence would mean कि अगर मुझे पता है कि P'4 पर phase क्या है, तो I can figure out कि P'1 पे phase क्या होगा. There would be, this wave is going to have a sinusoidal variation जो कि हम पढ़ रहे हैं. It would be like a plane traveling wave with a sinusoidal variation, and I can use the expression जो भी sinusoidal में हमने phase का expression किया है, so I can use that expression and I can figure out कि जैसे जैसे time बढ़ रहा है तो वैसे वैसे मतलब बेसिकली इसमें टाइम समझ रहे हो, मतलब टाइम हम हमेशा आगे की तरफ सोचते हैं, पर P'4 इज नॉट द रीसेंट वेव फ्रंट. ये सबसे पहले निकला था, इसलिए ये सबसे आगे है. तो सोर्स से जो सबसे पास वाला वेव फ्रंट है, दैट इज द मोस्ट रीसेंट वेव फ्रंट, एंड देयरफॉर मोस्ट रीसेंट का मतलब है कि वहां पर टाइम का वैल्यू ज्यादा है. T0 पर ये वाला वेव फ्रंट निकला है. दिस कॉरेस्पॉन्ड टू द टाइम at t is equal to 0, and this correspond to some time t greater than 0. Okay, because wave fronts are being emitted in time. So temporal, एक snapshot से ये उसका है, हेक्ट का है. नहीं, यानी एक स्नैपशॉट के हिसाब से इमेजिन कर सकते हैं. हाँ हाँ हाँ, स्नैपशॉट की तरह से भी कर सकते हैं.
that is another way. ठीक है. So temporal coherence का मतलब यहाँ से आ गया. तो जो first A diagram है, so basically this is showing a source which has a very high amount of spatial and temporal coherence. ठीक है. तो इस तरह के सोर्स के साथ कोई भी इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट में डिजाइन कर सकती हूँ. आई विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम. बट इफ आई लुक एट द फिगर बी, तो यहाँ पर क्या शो किया गया है? यहाँ पर एक तो फिगर देख के एक चीज मुझे समझ आ जानी चाहिए कि ठीक है, यहाँ पर जो वेव फ्रंट्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस. हाँ जी मैम, टेम्पोरल एक बार वापस बता दीजिए, नहीं समझा. अच्छा, टेम्पोरल कोहेरेंस का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो दूसरी तरह से समझते हैं. अगर मान लो मैं P-4 जो पॉइंट है, आई डिसाइड टू स्टैंड हियर. ठीक है. एंड आई ऑब्जर्व द वेव कि वेव आ रही है. तो आई वुड ऑलवेज सी कि सेम काइंड ऑफ वेव इज कमिंग, उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है. आई वुड सी कि सेम ही चीज आ रही है, बिकॉज एक वेव फ्रंट दूसरे वेव फ्रंट से लैम्डा डिस्टेंस से सेपरेटेड होता है. तो मैं P-4 पे अगर खड़ी रहूंगी, तो जैसे जैसे वेव फ्रंट्स साइज में बड़े होके P-4 तक पहुंचेंगे, मतलब P1- वाला वेव फ्रंट भी टाइम के साथ आगे जाएगा एंड इट विल एक्सपैंड एंड इट विल रीच P-4. बट मुझे P-4 पे कोई भी डिफरेंस फील नहीं होगा. I would always feel that the same wave is coming. There is no change happening in the wave. And that is temporal coherence, that in time, I am not observing that anything has changed at a specific spatial location. जो हमने कॉस का जो हम टाइम के साथ में फेस का चेंज देखते हैं, वो हम ओमेगा टी से देखते हैं. तो ओमेगा जो है दैट इज फिक्स्ड फॉर दिस पर्टिकुलर सोर्स, बिकॉज वेव फ्रंट जो है वो एक ही फ्रीक्वेंसी पर एमिट हो रहा है. वेव फ्रंट एमिट करने का फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रहा है, एंड आई एम एज्यूमिंग दैट इट्स अ मोनोक्रोमैटिक सोर्स. सो ओमेगा का एक ही वैल्यू मैं एज्यूम कर रही हूँ, मैं कोई ओमेगा का रेंज एज्यूम नहीं कर रही हूँ. ओमेगा का रेंज एज्यूम करने का मतलब है कि मेरे पास में इस तरह से एक लाइन विड्थ बन रहा है. आई एम गेटिंग अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी डेल ओमेगा, जहाँ फॉर अ क्वाज़ाई मोनोक्रोमैटिक सोर्स. ठीक है. बट आई एम फॉर द फर्स्ट फिगर आई एम एज्यूमिंग दैट आई हैव अ कंप्लीटली मोनोक्रोमैटिक सोर्स. एक ही फ्रीक्वेंसी ओमेगा है. तो अब क्या होगा इन टाइम, अगर मैं टाइम में कंसिडर करूं, तो अगर मैं P-4 स्पेशियल लोकेशंस पे खड़ी हो जाती हूँ एंड आई ट्राई टू ऑब्जर्व द वेव फ्रंट्स पासिंग मी, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि कोई चेंज हुआ है वेव में, बिकॉज सारे वेव फ्रंट्स तो लैम्डा डिस्टेंस से ही सेपरेटेड है. मतलब 2π का फेस चेंज ही हो रहा है. तो P-4 पे जो फेस था, हमेशा जब वेव फ्रंट P-4 पे आएगा वो वही फेस उसी वैल्यू पे आएगा. समझ रहे हो? तो आई विल नेवर सी दैट एनीथिंग इज चेंजिंग. और इन अदर वर्ड्स, if I know that what is the phase at P-4, then I can tell you that what would be the phase at P-1, because it is evolving in a known pattern. जो phase है वो एक known तरीके से change हो रहा है with time. यानी एक फिक्स पॉइंट के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं ना. टेम्पोरल कोहेरेंस हमेशा, देखो जब हम फेस को स्टडी कर रहे थे, तो हम फेस चेंज दो तरह से स्टडी करते हैं. या तो फेस चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ चेंज इन द पाथ और द स्पेशल लोकेशन or the change in time. So if I want to study temporal coherence, I will fix a point in space and then I will study the change of phase with time. But if I want to study spatial coherence, I'll fix one time and then I'll study the change of phase with respect to x. एक वेरिएबल को एक ही बारे में स्टडी करना है, तो I'll fix the other variable. तो टेम्पोरल कोहेरेंस हमेशा एक पॉइंट के लिए मैं चेक करती हूँ, that I fix one spatial location and then I try to see that how, what is the, how the phase is changing with time. Is there a known pattern? Can I figure out कि अगर मुझे पता है P-4 पे अगर मैं measure करती हूँ that this is the phase of my light, so is the temporal coherence of the beam big enough that I can also tell you कि P-1 पे क्या phase होगा. ठीक है.
तो अब बिग इनफ का क्या मतलब है, वो नेक्स्ट फिगर से पता चलेगा, ठीक है। तो अगर मैं नेक्स्ट फिगर में अब जाती हूँ बी में, तो यहाँ पे मुझे एक चीज तो देखने में ये पता चल रही है कि यहाँ पर कुछ अलग फ्रीक्वेंसी है, जो वेव्स है, मतलब जो वेव फ्रंट्स है उनके बीच का डिस्टेंस अलग है। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो कुछ अलग है, वेव फ्रंट्स बहुत पास पास में आ रहे हैं। और इनफैक्ट अगर मैं ये वाला डिस्टेंस कंसिडर करूं बिटवीन दिस वेव फ्रंट एंड दिस वेव फ्रंट, तो ये तो बहुत ही ज्यादा है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और भी कम है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी चेंज है, तो ये ऐसा सोर्स है जिसका फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, अगर मेरे पास ऐसा कोई सोर्स होगा, तो अगर मैं अब ये वाला स्पेशल पॉइंट कंसिडर कर लो, अगर मैं P'4 पे अपना कोई इंस्ट्रूमेंट लेके खड़ी हो जाऊं एंड देन आई ट्राई टू सी कि क्या फेज में विद रिस्पेक्ट टू टाइम कोई चेंज मुझे ऑब्जर्व मैं करूंगी, तो हाँ मैं करूंगी, बिकॉज अब जो वेव फ्रंट्स मेरे पास पहुंचेंगे एज द टाइम इज गोइंग एंड द वेव फ्रंट इज कमिंग टूवर्ड्स मी, the nature of the wavefront is changing because frequency of the source has changed. तो मुझे कभी कभी लगेगा कि वेव फ्रंट्स अच्छा बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, कभी लगेगा अच्छा बहुत टाइम बाद आ रहे हैं। तो फॉर मी टू गेस कि P'1 पे क्या फेज होगा, या टू गेस कि अब जो नेक्स्ट वेव फ्रंट आएगा वो कितनी देर में आएगा या वो किस फेज के साथ आएगा, आई कैन नॉट डू दिस, ओके। So this is a source with less amount of temporal coherence. By less और partial temporal coherence का इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं P2 पॉइंट जो मैंने ग्रीन डॉट में बनाया, अगर मैं यहाँ पे खड़ी होती हूँ, तो मे बी P'2 तक सिर्फ इतने रीजन के लिए, जो इतने वेव फ्रंट्स टाइम में सेपरेटेड हैं, सिर्फ इतने टाइम के लिए ही मैं बता सकती हूँ कि द फेज इज फॉलोइंग सम काइंड ऑफ लॉजिक। आई कैन फिगर आउट सम मेथड कि फेज इस तरह से चेंज हो रहा है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। सो बेसिकली फ्रीक्वेंसी इतने टाइम के लिए फिक्स था, तो आई कैन टेल कि इतने टाइम के लिए जो मेरा बीम था वो टेम्पोरली कोहेरेंट था। तो मुझे अगर मैं सिर्फ इतने मतलब टाइम का मेरा मतलब है कि P'2 का जो वेव फ्रंट है वो जब तक P2 पर पहुंचता है, तो जितना टाइम वो लेगा सिर्फ उतने टाइम के लिए आई कैन से कि अच्छा मेरा बीम टेम्पोरली कोहेरेंट था, पर उसके बाद नहीं था। तो दिस इज अ सोर्स which has partial temporal coherence, okay, but this source still has complete spatial coherence. क्यों? क्योंकि स्पेशल कोहेरेंस हमेशा एक वेव फ्रंट पे डिफाइन हो रहा है। तो अगर मैं इसका कोई वेव फ्रंट पिक कर लूं, अगर मैं ये वाला वेव फ्रंट पिक कर लूं, ठीक है, और जब मैं स्पेशल कोहेरेंस का बात कर रही हूँ तब मैं एक टाइम फिक्स कर दे रही हूँ, ठीक है, एक टाइम कोई टी मैंने फिक्स कर दिया है और उसके बाद मैं वेव फ्रंट के सारे पॉइंट्स को चेक कर रही हूँ। तो जितने भी पॉइंट्स वेव फ्रंट पे होंगे दे वुड ऑलवेज हैव a spatial coherence, because wavefront का definition ही ये है that it consists of all the points which are at the same phase, ठीक है, it's the locus of those points which have the same phase value. So यहाँ पर अब क्या है, मेरा जो P1 और ये P2 और जो P3 points है they have complete spatial coherence. तो काफी बार ऐसा होता है that your source does not have complete temporal coherence, but because you have complete spatial coherence, so you can still use that source and you can still devise some kind of interference experiment that uses the spatial coherence of the source, ठीक है। तो ये मतलब फिर एक कोहेरेंस लेंथ भी डिफाइन कर सकते हैं हम, कोहेरेंस टाइम भी डिफाइन कर सकते हैं। तो कोहेरेंस टाइम होगा बेसिकली वो टाइम जिसके लिए टेम्पोरल कोहेरेंस मेंटेन्ड होगा, ठीक है। इस तरह की बाकी चीजें हम डिफाइन कर सकते हैं, वो हमें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उस पर कोई सवाल नहीं आता है। पर मैं ये डिस्कस कर रही हूँ कि इतना एटलीस्ट मुझे पता होना चाहिए, व्हेन आई थिंक ऑफ कोहेरेंस आई शुड नॉट ऑलवेज ओनली थिंक ऑफ कोहेरेंस जैसे कि 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि कोहेरेंस का मतलब सिर्फ है दैट आई हैव टू वेव्स व्हिच आर इन फेज, ओके, सिर्फ उस तरह से नहीं सोचना है। कोहेरेंस व्हेन आई गो इनटू ऑप्टिक्स I sort of separate the phenomena which is dependent on both space and time into two, मतलब ये
सिर्फ समझने के लिए हम सेपरेट करते हैं, रियल लाइफ में तो at a time it is getting affected by both, right? But we have to make sense of the phenomena, so we sort of think of coherence as as having these two components, as a spatial coherence and a temporal coherence. So temporal coherence thoda matter karegi jab main when I want to for example let us say मैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर बनाना चाहती हूँ, तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर में क्या होगा, अगर जो मेरा एक इनपुट बीम है उसको मैं स्प्लिट करती हूँ, है ना, स्प्लिट करने के बाद एक को एक्स्ट्रा लंबा पाथ में मूव कराती हूँ और फिर दो ज्वाइन करती हूँ, तो अब क्या होगा, अगर मेरा सोर्स में टेम्पोरल कोहेरेंस नहीं होगा या बहुत छोटा टेम्पोरल कोहेरेंस होगा, तो थोड़े थोड़े टाइम बाद फेजेस रैंडमली चेंज हो जाएंगे, तो माय इंटरफेरेंस पैटर्न वुड नॉट बी सस्टेन्ड. सो इसीलिए lasers are extremely good for doing interference experiments, and lasers are actually, lasers की वजह से ही optics में इतना research हुआ है, because lasers have extremely high spatial and temporal coherence. So बिना temporal coherence के भी बहुत सारे मतलब माइक्रोस्कोपी के बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो इंटरफेरेंस बेस्ड होते हैं, तो वो सारे जो टेक्निक्स हैं, इवन जैसे होलोग्राफी होती है, 3D होलोग्राम्स कभी सुना होगा या देखे भी होंगे, इनफैक्ट वो सब चीजें लेजर्स के थ्रू ही पॉसिबल है, बिकॉज दे आर द सोर्सेज हु कैन मेंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ टेम्पोरल कोहेरेंस. सो इवन इन टाइम दे मेक श्योर कि हाँ बीम बहुत काफी देर तक इट इज मेंटेनिंग सम काइंड ऑफ अ फेज रिलेशनशिप. उनका फ्रीक्वेंसी बहुत स्टेबल होता है, लेजर का जो लेजिंग फ्रीक्वेंसी होता है इट्स एक्सट्रीमली स्टेबल. पर अगर हमारे पास लेजर भी नहीं है, जैसे लैब में शायद यंग्स डबल स्लिट किया होगा, तो मे बी लेजर से नहीं भी किया होगा, मे बी यू माइट बी यूजिंग सम अदर काइंड ऑफ क्वाज़ाई मोनोक्रोमैटिक सोर्स, ठीक है, तो पर उसमें भी हो जाता है, बिकॉज यंग्स डबल स्लिट यूजेस द स्पेशल कोहेरेंस. उसके लिए स्पेशल कोहेरेंस बहुत जरूरी है, बिकॉज वी आर बेसिकली यूजिंग द वेव फ्रंट एंड स्प्लिटिंग इट इनटू टू सोर्सेज. We are making two sources by splitting one wavefront. So these two sources are then always in phase, and I can produce some kind of interference fringes on the camera. Okay, so iske baad mein what we have to do is we have to study. Matlab, if you want to read about this a little bit more, so you can actually read the discussion in Hecht around this figure. And there is also discussion of coherence in chapter number 12. That also you can study, but utna exam ke liye zaruri nahi hai. Agar thoda bhi, I'm discussing so that you should not feel like 11th का ही टॉपिक में ही रह गए. थोड़ा ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो तो थोड़ा एक कॉन्सेप्ट तो आगे पता होना ही चाहिए कि हाँ ठीक है, कुछ ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, सो दैट यू कैन थोड़ा सा तो कुछ एक्स्ट्रा पता चले, इसलिए आई एम स्पेंडिंग अ टाइम. तो अब वी हैव टू राइट डाउन द कंडीशंस विच आर नेसेसरी फॉर इंटरफेरेंस. तो अब हम अपने प्रॉब्लम में आते हैं जो हम स्टडी करना चाहते हैं. So what we have is we have two sources. If I have S1 and I have S2 and they are producing, these are so I'll just write down कि क्या क्या conditions हैं to have, to see good fringes or to have proper interference. And यहाँ पर कोई point P है जहाँ पर I want to observe the interference. मैं ऑब्जर्व करना चाहती हूँ कि क्या मुझे पॉइंट पी पे मिल रहा है, ठीक है. एंड इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कुछ डी है. सो कुछ चीजें जो कि हमें हमेशा मतलब पता होनी चाहिए इंटरफेरेंस के बारे में, द कंडीशंस व्हिच आर नेसेसरी फॉर इंटरफेरेंस. सो लेट अस राइट दैट. So the first condition is that the sources S1 and S2, these are my sources. They should be monochromatic and of same frequency.
So why should they be of the same frequency? They should be of the same frequency because अगर frequency दोनों का different होगा, अगर इसका frequency omega 1 है और इसका frequency omega 2 हो जाएगा, तो then what will happen is दो मतलब if you want to correlate it with the superposition जो हमने study किया था scalar fields के साथ में, वहाँ पे क्या हो रहा था, if I'll take two frequencies omega 1 and omega 2, then I was generating some beats. तो वो beats क्यों आ रही थी? क्योंकि omega 1 जो frequency है उसका phase अलग तरीके से change हो रहा था, omega 1 t की तरह से change हो रहा था, और जो second source है अगर उसका frequency omega 2 है तो उसका phase omega 2 t उस हिसाब से change हो रहा था. तो दोनों का phase अगर starting में अगर time 0 पर initial phase अगर दोनों का मैं कुछ फिक्स कर दूं, पर टाइम के साथ क्या होगा, दे विल कीप ऑन डेवलपिंग, उनका जो फेज है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, फेज डिफरेंस बिटवीन द टू सोर्सेज, बट द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू सोर्सेज विल कीप ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम. सो वो रैंडमली फेज डिफरेंस चेंज होता रहेगा. ठीक है, सो आई विल नॉट बी एबल टू ऑब्जर्व अ स्टेबल इंटरफेरेंस फिनोमिना, and in fact I'll not be able to form fringes. Okay, so this is not what we use. So we make sure that we have monochromatic sources and the sources are of nearly about the same frequency. Okay, बहुत difference नहीं है, they are nearly same. अगर कोई 632 है, 633 है, still you can interfere them, but they should not have completely, बहुत gap नहीं होना चाहिए उनकी frequencies में, otherwise उनके बीच का phase difference time के साथ change होता रहेगा. It would be a rapidly changing phase difference between the two, and even though जो individual sources है वो highly spatially coherent है, highly temporally coherent है, फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उनका ओमेगा 1 और ओमेगा 2 डिफरेंट है. तो एक सोर्स का फेज ओमेगा 1 टी के हिसाब से चेंज होगा और दूसरे का ओमेगा 2 टी के हिसाब से चेंज होगा, एंड दोनों का फेज का जो डिफरेंस है वो टाइम के साथ में चेंज होता रहेगा, एंड आई विल नॉट बी एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट phase difference between them, and so I'll not be able to see any interference. The second thing is that I should also make sure that this distance d, so d is the distance between S1 and S2. So d should also be greater than lambda. So because इसका reason क्या है, so d should be greater than lambda, it should not be less than lambda, because we want to maintain some, again it is related to coherence, but ये वैसे दिया ही होगा तो इसमें कुछ करना नहीं है. एक और हम डिस्टेंस डिफाइन कर सकते हैं, ये डिस्टेंस which is the distance between the sources and the screen where I want to see the pattern. So the second thing is that this d should be greater than this separation between the sources. It should be far enough from the sources because हम interference देखना चाहते हैं between plane wave fronts. एंड ये कंडीशन बाद में जब हम यंग्स डबल स्लिट को सॉल्व करेंगे तो ये कंडीशन यूज करके हम कुछ सिंप्लीफाई भी करते हैं एक्सप्रेशंस को, अदरवाइज वी वुड गेट हाइपरबोलिक फ्रिंजेस. तो if I will not maintain this condition that d is much greater than d, then rather than getting plain fringes I would get hyperbolic fringes. तो hyperbolic fringes कैसी होती हैं, that I would get fringes like this and like this towards the edges. So basically when we make sure that d is greater than small d, so in a way we are zooming into this region so that we only see fringes looking like this. Okay, so this discussion is given in Ghatak, you can read that. So they have shown that how you will get hyperbolic fringes banti hai, but because we make sure that this condition is satisfied, so we observe on the camera that they are straight line fringes, हमें ऐसी दिखती हैं. So and the fourth thing is that
वही that the two sources S1 and S2 should be coherent. So coherent का मतलब क्या है? They should be in phase, they should be marching together. जैसे वो time increase हो रहा है, yeah, they should always march together. Their phase should always change in the same manner. ठीक है, उसके बाद में फिफ्थ चीजें नेसेसरी फॉर इंटरफेरेंस तो नहीं है ये, बट इट विल गिव यू अ गुड कॉन्ट्रास्ट इन द फ्रिंजेस, जो कि हमने कल भी डिस्कस किया था, दैट द क्लीनेस्ट या फिर शार्पेस्ट पैटर्न मिलेगा मुझे व्हेन द टू इंटरफेयरिंग waves have equal amplitude. सो ये कल हमने डिस्कस किया था कि क्यों होगा, क्योंकि फिर टोटल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आई विल गेट इंटेंसिटी ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो. सो इफ one is completely zero, the other basically visibility बढ़ जाएगी fringes की, they would be more clearer, more sharper pattern I would get. ठीक है, उसके बाद में अगर मैं अब इंटरफेरेंस देखने के लिए जरूरी नहीं है कि हमेशा ही मेरे पास मोनोक्रोमैटिक सोर्स हो. इंटरफेरेंस वाइट लाइट से भी मिलता है बहुत बारी, पर अगर मैं वाइट लाइट का जैसे इंटरफेरेंस करूं, तो अगर मैं लेटस से दोनों सोर्सेस जो हैं वो लोग वाइट लाइट एमिट कर रहे हैं, बोथ सोर्सेस ठीक है. सो वाइट लाइट का मतलब क्या है? दैट इट कंटेन्स all the visible frequencies are present together in this light, so that's why it appears white to me. So फिर क्या होगा? If both the sources are emitting white light, I would still be able to observe some kind of interference pattern, but it would look very much different compared to the interference pattern of a monochromatic beam. क्योंकि अब क्या होगा? because white light has all the frequencies, इसके अंदर let us say कुछ omega r है corresponding to the red, and maybe it has some omega blue corresponding to the blue frequency. So what would happen is कि दोनों sources का जो red light है, जो red light के corresponding portion है जो कि omega r frequency का है, they would interfere with each other, and the blue components of both the sources would interfere with each other, and similarly सारी frequencies अपनी वाली frequencies के साथ interfere कर देंगी, and they will make a pattern जिसमें center में I will get a white band, and then I will get other colors band. So I have actually this figure, so I'll just put it here for you. Okay, so this is how, so if I will see that what kind of fringes I will get for white light, कुछ इस तरह का fringes मुझे मिलेगा. So I'll get to see all the colors. Slightly lesser intensity का मिलेगा because all the colors have separated. जितना bright मेरा initial source था उतना bright नहीं दिखेगा pattern. Sodium light के लिए यहाँ पर इस तरह का slightly yellowish type का fringes दिखा है यहाँ पे. So sodium light is almost a quasi monochromatic source, almost monochromatic ही होती है. So you are seeing absolute brighter and darker regions. तो यहाँ पे जो bright orange lines हैं, they are basically the minima, and the brighter yellow portions are the maxima. ठीक है. तो अब इसके बाद में let us go to, so we have to basically study two ways of interference. तो
जो दो मेथड्स होते हैं. So there are two methods. For interference. So एक हो सकता है division of wavefront. तो इसका तो एग्जाम्पल अभी मैंने बताया that the Young's double slit is actually the division of wavefront, and the second is division of amplitude. तो डिविजन ऑफ वेव फ्रंट तो यंग्स डबल स्लिट हो गया, तो नाम से ही समझ आ रहा है दैट व्हाट एम आई डूइंग, डिविजन ऑफ वेव फ्रंट कर रही हूँ. वेव फ्रंट जो भी इंसिडेंट वेव फ्रंट है, आई एम dividing that wavefront into two sources, and then those two sources will act like coherent sources, and I am making interference pattern using those two sources. Now the second method is division of amplitude. तो इसमें आता है माइकलसन इंटरफेरोमीटर या न्यूटन रिंग्स, उस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स. तो हमें वो सब पढ़ना नहीं है, बट हमें इसका एक एप्लीकेशन स्टडी करना है. जब हम थिन फिल्म्स का हमें थिकनेस निकालना होता है, सारे क्वेश्चंस उसी पे आते हैं. तो अगर ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है माइकलसन इंटरफेरोमीटर, तो आप रिवाइज कर लेना. इस पे वैसे कोई क्वेश्चन आता नहीं है, बट आई एम सेइंग फ्रॉम सम इंटरव्यू एस्पेक्ट में भी. एंड न्यूटन रिंग्स पे बहुत मजा आता है टीचर्स को क्वेश्चन मतलब इंटरव्यू में पूछने में. सो ये इफ यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू एंड यू से दैट तुम ऑप्टिक्स पढ़ के आए हो, तो एटलीस्ट you should know at least the difference between these two, that what is division of wavefront, what is division of amplitude. तो division of amplitude का wavefront का तो हमें समझ आ गया. division of amplitude का क्या मतलब है? तो division of amplitude का मतलब है कि मैं कोई भी ऐसा इंटरफेरोमीटर बनाऊं या इंटरफेरोमेट्री सेटअप बनाऊं जिसमें जो भी मेरा इनपुट बीम है, मान लो लेजर से सम इनपुट इज कमिंग, and then I put some kind of an optical element. मैं कुछ ऐसा optical element लगा दूँ, कोई mirror लगा दूँ या फिर कोई beam splitter लगा दूँ, and I split the beam into two portions. Okay, so I split it into two portions. So in a way जो भी beam आया था उसको मैंने दो parts में divide कर दिया. ठीक है, that is one way. But amplitude term आ रहा है ना, तो amplitude को हम इस तरह से भी imagine कर सकते हैं कि मान लो मैंने एक ग्लास स्लैब लिया और उस ग्लास स्लैब को, जैसे कल हमने डिस्कस किया था, उसमें कुछ लाइट फॉल हुई, कुछ रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ रिफ्रैक्ट हो गई. तो बेसिकली जो ये लाइट रिफ्लेक्ट हुई और जो लाइट रिफ्रैक्ट हुई, दोनों का जो इंटेंसिटी था वो पहले से कम हो गया. ठीक है, या फिर मतलब इट बेसिकली मीन्स दैट इन अ वे यू हैव स्प्लिट वन लाइट का, हमने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. उसका वेवफ्रंट डिवाइड नहीं किया, बल्कि उसी लाइट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और उन दो पार्ट्स को मैंने डिफरेंट पाथ लेंथ मूव कराया. और वो एक लाइट ज्यादा लंबा पाथ ट्रैवल करी, दूसरी लाइट छोटा पाथ ट्रैवल करी, और उस पाथ को मैं इस तरह से चेंज करूंगी सो दैट बोथ ऑफ देम इंटरफियर. ठीक है, सो आई विल फाइंड आउट, आई विल वेरी द पाथ till I'll get some interference pattern. So division of amplitude comes in those kind of experiments. जैसे माइकलसन में होता था कि एक आर्म लंबा कर दो. न्यूटन रिंग्स में भी सेम होता है that you have a curved surface. एक कुछ ऐसा लेंस होता है, मतलब not lens, it's some kind of a curved surface, and then you have a flat glass plate होता है, उसके ऊपर एक curved surface होता है, या लेंस ही होता है, I don't remember. And then one ray is reflected back from the curved surface, and the other is reflected back from the plane surface. तो अगर ऐसा मेरे पास सेटअप होगा, तो एक रे यहाँ पे आई और यहाँ से वापस चली गई, और एक यहाँ पे आई और यहाँ से वापस चली गई, तो 1 और 2 के बीच में इंटरफेरेंस स्टडी करते हैं. सो बेसिकली इस एक ही इनपुट रे को दो में डिवाइड करते हैं, मतलब इस पे डिवाइड ही हो गया, एंड देन वी स्टडी दीज टू, वी सॉर्ट ऑफ इंटरफेयर दीज टू. तो बेसिकली एंड में तो एनालिसिस सिमिलर ही हो गया है, कंडीशंस तो सेम ही हो गई है इंटरफेरेंस के लिए. चाहे मैं डिविजन ऑफ एम्पलीट्यूड करूं या डिविजन ऑफ वेवफ्रंट करूं, आई हैव टू मेक श्योर दैट दे आर monochromatic sources. I have to make sure they are coherent. I have to make sure that
रफली मैं जो भी स्प्लिटिंग कर रही हूँ, आई एम सॉर्ट ऑफ डिवाइडिंग इट इनटू 50-50, चाहे मैं उसको 2 पार्ट्स में डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड करूं या मैं वेव फ्रंट से 2 सोर्सेस बनाऊं, दोनों का मतलब दोनों का जो भी इंटेंसिटी है या दे शुड बी सिमिलर इन दैट सेंस, दे शुड बी इंटेंस इन अ सिमिलर मैनर। यहाँ पर भी जैसे हम लोग बीम स्प्लिटर यूज करते हैं, तो वी यूज अ 50-50 बीम स्प्लिटर। सो द 2 बीम्स जो हम स्प्लिट करते हैं एक इनकमिंग बीम से, so they are split so that 50% of the light passes this side and 50% of the light passes this side, so that when we sort of interfere or join these 2 beams, they sort of give us nice fringes. तो these are the 2 methods. तो हमें ये दोनों ही पढ़ने हैं। तो पहले हम डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट पढ़ेंगे, यंग्स डबल स्लिट, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं और ये स्लाइटली इम्पोर्टेंट है। तो कितना टाइम? ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं 10 मिनट में। ठीक है, सो अब हम करेंगे यंग्स डबल स्लिट। तो इसके लिए पहले लेट अस मेक एक ज्योमेट्री दैट what are the things that we have. तो अब जो मैं sources बनाऊंगी, this is my source and this is my source. So this is some source S1 and this is some source S2. तो ये दोनों sources कैसे आए हैं? ये दोनों sources जो अभी हमने डिस्कस किया था ऐसे बने, ये इस वाले फिगर से, that I had one source and I have done the division of the wavefront and then I have generated S1 and S2. तो अब S1 और S2 के बाद क्या हो रहा है, that is what I want to study. So now I have these 2 sources S1 and S2. So what we will do is we will सब कुछ हमें थोड़ा सिमेट्रिकल बनाना है। So इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो लेट अस से D है, और इनके बीच का अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं डिवाइडिंग द डिस्टेंस, so then I can say this is d by 2 d by 2. Then यहाँ पर I have my screen which can be a camera. कैमरा का सेंसर हो सकता है, ये कोई स्क्रीन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एंड यहाँ पर देन आई हैव सम पॉइंट P, which is, I don't know why it's always called P, but some point is there where I want to sort of check कि क्या इंटरफेरेंस पैटर्न मुझे मिल रहा है। ठीक है, सो ये स्क्रीन है मेरी, यहाँ पर मैं डिफाइन कर देती हूँ कि दिस इज सम पॉइंट O विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू द ओरिजिन। कुछ मतलब ओरिजिन इन द सेंस यहाँ से आई वांट टू मेजर कि जो भी बेसिकली जो भी मेरे पास पैटर्न आएगा फ्रिंजेस का, उसमें कोई एक सेंट्रल वाला फ्रिंज होगा ना, तो O कॉरेस्पॉन्ड्स टू ओरिजिन इन द सेंस कि सेंट्रल जो फ्रिंज बनेगा वो इधर बनेगा। ठीक है, सो दिस इज माई O और द 0th फ्रिंज या सेंट्रल फ्रिंज का पोजिशन है ये। और यहाँ से आई विल डिफाइन दैट लेट अस से यहाँ पर कोई nth fringe बन रहा है, so that this distance is xn. ठीक है, so nth fringe का distance xn है। so अब इस वाला, because I am following the condition that the distance from the screen to these sources D. Now D is greater than small d, this distance. ओके, सो ऑल्दो ये पॉइंट सोर्सेज है, यहाँ पे कोई स्फेरिकल वेव एमिट हो रहा है, बट बिकॉज बहुत ही दूर मैंने स्क्रीन रखा है, सो बाय द टाइम आई एम रीचिंग द पॉइंट P, आई हैव ऑलमोस्ट प्लेनर वेव फ्रंट्स विच आर इंटरफेयरिंग। ओके, सो अब मैं यहाँ से एक कोई रे बना रही हूँ जो रे इज गोइंग टू P, एंड सिमिलरली कोई एक रे S2 से भी P में जा रहा है। तो नाउ आई वांट टू फाइंड आउट कि यहाँ इंटरफेरेंस
क्या हो रहा है. तो अब इंटरफेरेंस किस पे डिपेंडेंट होगा? अगर मैं मानूं कि S1 और S2 जो है they are coherent sources. ठीक है, so if S1 and S2, if you remember last class में we had written delta. So this delta had two components. एक तो K1R था और एक K2R था, and उसके साथ एक epsilon1 minus epsilon2 था. So this epsilon1 minus epsilon2 was corresponding to the initial phase difference between the two sources. So for us, because S1 और S2 दोनों डिविजन ऑफ वेवफ्रंट से मुझे मिले हैं, इसलिए उनके बीच का जो ये इनिशियल फेज डिफरेंस है ये करंटली मेरे लिए वैलिड नहीं है. आई एम पुटिंग इट इक्वल टू 0 और आई एम अज्यूमिंग इट टू बी कांस्टेंट बिकॉज दैट इज हाउ आई हैव प्रोड्यूस्ड S1 एंड S2. तो जितना भी फेज जो डेल्टा है, इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द फेज गेन ड्यू टू डिफरेंस इन द पाथ ट्रैवल्ड. तो जो रे S1 से निकल के P पे पहुंचा और जो रे S2 से निकलकर P पे पहुंचा, उन्होंने डिफरेंट पाथ ट्रैवल किया एंड बिकॉज ऑफ दैट दे हैव गेन्ड डिफरेंट फेजेस. तो उनके बीच का डिफरेंस आई वांट टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज दिस डेल्टा. ओके, सो अब ये निकालने के लिए व्हाट आई विल डू इज आई कैन roughly draw, I can drop a normal on this ray, and this is making 90 degree here. So now I know कि I want to basically find out S2P. I want to find out this. I want to find out S2P minus S1P. This is the path difference. So if I can find out the path difference, I can find out the phase difference also. What is this? Delta क्या था? Delta था phase difference. So delta को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं that delta is equal to K and this. Capital lambda क्या है? That is the path difference. So then I can say that delta is equal to 2 pi by lambda, capital lambda, or lambda is equal to upon 2 pi. ठीक है, ये तो नॉर्मली मतलब कुछ ज्यादा मैथ्स तो इसमें है नहीं. तो अब मैं क्या एज्यूम कर रही हूँ? आई एम एज्यूमिंग कि पॉइंट P पर जो ये nth फ्रिंज बन रहा है, आई एम एज्यूमिंग दैट दिस इज इन फैक्ट अ मैक्सिमम. I can assume it to be a minima also. I'll still get the same result, but I'm assuming it is a maxima. So then if the fringe at P is a bright fringe, that means it's a maxima. Then I know that S2P minus S1P, this should be equal to n lambda. ये n lambda कहाँ से आया? अगर अगर मैं यहाँ से देखूं ये वाला जो फॉर्मूला है, तो हमें पता है कि ब्राइट फ्रिंज टोटल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डेल्टा का वैल्यू क्या होता है? डेल्टा का वैल्यू उसमें होता है क्या होता है? n ही तो होता है ना, n पाई लैम्डा बाय 2 पाई. मैम ये नहीं, 2n होता है क्या? मैम जो डेल्टा इज इक्वल टू के कैपिटल लैम्डा लिखे उसमें वो के एवरेज है क्या? नहीं, अभी तो K1 और K2 सेम ही है बिकॉज एक ही वेव फ्रंट से लिया है मैंने. K is not average. It's coming from the same wavefront. It's coming from the same source. So for me, K is same. ये तो मैंने लास्ट टाइम का फॉर्मूला लिखा था जिसमें K1, K2 था. But for me, K is same for both. ठीक है. So then I know that the lambda is equal to n lambda. तो अगर path difference n lambda होगा, then it would correspond to a maxima. Right? So therefore,
अब मैं फेस के टर्म में नहीं स्टडी करूंगी, अब मैं जो भी स्टडी करूंगी पाथ डिफरेंस के टर्म में स्टडी करूंगी, ठीक है। सो नाउ आई वांट टू फाइंड आउट, अगर मुझे पता चल जाए कि S2P माइनस S1P का क्या वैल्यू है, तो आई हैव द डायरेक्ट फॉर्मूला, आई कैन फाइंड आउट कि मतलब किस टाइप के फ्रिंजेस मुझे मिल रहे हैं, कौन सी लोकेशन पे कौन सा फ्रिंज मिलेगा, एवरीथिंग वुड कम फ्रॉम हियर। सो इफ आई लुक कि S2P का वैल्यू क्या होगा, तो लेट अस सी S2P हम कैसे निकालेंगे। तो अगर मैं S2P को देखूं तो आई कैन sort of complete this triangle, ठीक है। तो if I say that this is some n लिख लेते हैं, n डैश लिख, n नहीं, n तो उधर लिखा है, इसको क्या लिखें, a लिख लेते हैं, ठीक है। सो अब OA क्या होगा, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू d/2 बिकॉज ये सेम डिस्टेंस है। एंड सिमिलरली मैं ये वाला ट्राइंगल भी कंप्लीट कर लेती हूँ। Let me say this is B. So this distance is also d/2. Okay. So now अगर मैं first triangle देखूं, which is the triangle S1PB, ठीक है। So in the triangle S1PB, मुझे S1P का वैल्यू मैं निकाल सकती हूँ। I'll have to simply use the Pythagoras theorem, है ना। And similarly, if I look at the triangle S2PA, अगर मैं S2PA ट्राइंगल देखूं तो उसमें भी आई कैन फाइंड आउट S2P का वैल्यू बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ इज आई एम गोइंग टू टेक S2P स्क्वायर and I am going to subtract S1P square from it, okay? अभी मैं ये इक्वेशन को ना फिलहाल के लिए टच नहीं कर रही हूँ, इसको बाद में करूंगी। तो दिस इज इक्वेशन 1। सो आई विल सी S2P क्या होगा, S2P होगा फ्रॉम द ट्राइंगल S2PA से मुझे देखना है, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू S2A, दिस इज इक्वल टू S2A square plus PA square, and this will be equal to S1B square plus PB square, ये तो होगा ना, एक सेकेंड, S1B square and PB square, है ना। So now I will just substitute these values and I will get S2A तो क्या था, D ही था, तो I will get D square plus PA क्या था, PA था XN plus D/2, that was PA. So I will get XN plus D/2 square minus S1B क्या था, ये भी D ही था, प्लस और PB क्या था, XN माइनस D/2 स्क्वायर, ये था। देखो PB था, PB कहाँ से आ रहा था, PO माइनस D/2 इज इक्वल टू PB, ठीक है। मतलब सिंपल ज्योमेट्री, ये वैसे किया भी होगा बहुत बारी, हर जगह कराते हैं। तो D स्क्वायर प्लस XN स्क्वायर प्लस ये तो करना है ना, हाँ, D4/4 प्लस XND minus D square minus XN square and minus D4/4 and plus XND. तो ये सब आ जाएगा, तो this will cancel with this will cancel and this will cancel, and I will simply get that S2P square minus S1P square is actually equal to 2 times XND, ठीक है। XN क्या था, XN was ओरिजिन से जो मतलब बेसिकली डिस्टेंस था, OP था, कि जो सेंट्रल फ्रिंज है, 0th फ्रिंज जहां बनेगा वहां से ये nth फ्रिंज का डिस्टेंस, दैट वाज XN। तो मुझे ये मिल गया है। नाउ आई वांट टू फर्दर सॉल्व दिस एंड गेट, बेसिकली आई वांट टू फाइंड आउट सम फॉर्मूला फॉर XN, कि XN मैं कैसे निकालूं, ठीक है। XN मुझे लोकेशन कैसे पता चलेगी, क्या सम रिलेशनशिप लाइक दैट।
So now what I will do is I will write it as S2P minus S1P and S2P plus S1P. ये bracket मैंने expand कर लिया sir. So अब मुझे क्या चाहिए था? This is what I wanted, right? We wanted to find out this difference between S2P and S1P. So then I have S2P minus S1P is equal to 2 times XND divided by S2P plus S1P. ठीक है, तो अब यहाँ पे ऐसा सिंप्लीफिकेशन यूज करते हैं जिसको देख के मतलब गुस्सा भी आता है, पर वो यूज इसलिए करते हैं क्योंकि जब भी हम दो बड़ी क्वांटिटीज को ऐड कर रहे होते हैं ना, तो उसमें छोटे छोटे डिफरेंसेस हम इग्नोर कर देते हैं, बट हम जब डिफरेंस पे ही कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं तो हम डिफरेंस बहुत ज्यादा ध्यान से निकालना चाहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग एज्यूम करेंगे कि ये जो डिस्टेंस d है, कैपिटल D है, बिटवीन माय सोर्सेस एंड माय स्क्रीन, ये बहुत ज्यादा है, मतलब इट्स टू बिग. So this condition, जो ये वाली condition है, so we will assume that this is extremely big compared to this separation between the sources. Sources के separation के relation में it's extremely big. तो in a way you can imagine कि अगर मैं इस d को बड़ा करती जाऊं, ये तो फिक्स्ड है सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस, बट मैं इसको बड़ा करती जाऊं तो आई कैन एज्यूम कि जो S1P है दिस डिस्टेंस and S2P है this distance are roughly equal to D. ठीक है, तो this is the simplification which is done, which is a little bit मतलब लगता है कि क्यों कर दिया है, but this is done because I'm adding the two quantities. Okay, so many times when we are adding two big numbers, छोटे छोटे मोटे जो differences होते हैं उनको हम ignore कर देते हैं, but when I'm यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड में subtraction कर रही हूँ, तो सब्ट्रैक्शन में दैट डिफरेंस इज इम्पॉर्टेंट, उस डिफरेंस की वजह से ही इंटरफेरेंस बन रहा है, सो इसीलिए मैं उसको प्रॉपरली मैंने कैलकुलेट किया है, उसको मैंने d माइनस डी इज इक्वल टू 0 नहीं किया है. पर अब मैं क्या करूंगी, आई विल यूज दैट इफ d is greater than d, so I will say that S2P is roughly equal to d and S1P is roughly equal to D only for the denominator, okay, not for the numerator. And I will replace S2P because I'm adding two big numbers. So this is in a way thoda justified hai. I'm not doing the subtraction. So this I will replace by 2 times D, okay. So then I will have S2P minus S1P is equal to 2 times xn d by 2d, which is equal to xn d by d, or I can say S2P minus S1P is xn d by d. Okay, so let me say this is equation 2. So now I will use the equation 1 and equation 2 and I will write I will say that xn d by d is equal to n lambda because मैंने assume किया था कि वहाँ पे एक maxima बन रहा है. तो अब यहाँ पर मैं मिनिमा का कंडीशन भी डाल सकती हूँ, मैक्सिमा का भी कंडीशन डाल सकती हूँ, कोई भी डाल सकती हूँ. द रिजल्ट इज ओके, दोनों के लिए इट विल वर्क. सो अगर मैं वहाँ पर मैक्सिमा निकालना चाहती हूँ तो आई विल पुट दिस कंडीशन एंड दिस विल गिव मी दैट xn is equal to n lambda d by d. Okay, so this is the position of nth bright fringe. So इसी तरह से I can write the, तो ये formula मुझे याद होना चाहिए, ये this is an important formula, and then I can also write the position of n plus 1th bright fringe. So that will be x n plus 1 will be equal to n plus 1
lambda d by d. Okay, so now I want to find out the distance between two bright fringes. So distance between two consecutive bright fringes is equal to xn plus 1 minus xn, which is equal to n plus 1 lambda d minus n lambda capital D by D. तो इसको usually लिख देते हैं as beta. So beta is the fringe width. So beta is equal to lambda d by d. So this is also a formula that I should remember, that what is the fringe width. Okay, so this is something I should remember. And this is something I should remember. This is for a bright fringe. Dark fringe ke liye, I can write a similar formula. So dark fringe के लिए लिखे, dark fringe के लिए क्या हो जाएगा? So position of nth dark fringe लिखते हैं. ठीक है, तो डार्क फ्रिंज के लिए मुझे पता है कि my delta should be equal to what? 2n plus 1 2n plus 1 pi. ये लिखा था ना कल, that it should be either pi, 3 pi, 5 pi, like that. So therefore path difference क्या होगा? This will be equal to 2n plus 1 pi divided by k. K is 2 pi lambda. So that is equal to 2n plus 1 lambda by 2. So then this is the path difference. But हमने यहाँ पे माना है कि origin पे I am getting a central maxima. Therefore अगर n को 0 लिखेंगे तो क्या मिलेगा? ठीक है, it will work for all n actually. Lambda by 2 का difference आ रहा है ना, n 0 रख रहे हैं तो ठीक है, तो basically shifted fringe है. ठीक है, it's correct. So then the position of nth dark fringe मुझे निकालनी है. So then I will say that xn is equal to, then I will say कौन सा इक्वेशन था, इक्वेशन नंबर 2 जो है ना, इक्वेशन नंबर 2 है और इसको इक्वेशन 3 लिख देते हैं. This is the path difference, not this. So basically what I want is that S2P minus S1P should be equal to 2n plus 1 lambda by 2. इसको 3 लिखते हैं. Then from equation number 2 and equation number 3. Okay, so from equation 2 and 3, I would say that xn equals to d by capital D. Xn d by d is equal to 2n plus 1 lambda by 2. Or I will say xn is equal to 2n plus 1 lambda d by d. Okay, so then this is the position. So now this is what? This is the position of the nth dark fringe. So this is the nth dark fringe. So
ये भी मुझे याद होना चाहिए कि डार्क फ्रिंज में कैसे निकालती हूँ. सिंपली मैंने सिर्फ पाथ डिफरेंस का रिलेशन चेंज कर दिया. पहले n लैम्डा था, अभी वो 2n+1 लैम्डा बाई 2 हो गया है. जस्ट एक वही चेंज मैंने किया है. तो इसके लिए भी आई कैन कैलकुलेट द n+1 nth, the position of n+1th dark fringe. तो हो जाएगा वो xn+1 is equal to 2n+1 plus 1 divided by 2 lambda by d. Okay, so again I can calculate the fringe width. ये सेम आएगा पहले वाले केस से, बट मैं सिर्फ जस्ट प्रूव करके दिखा रही हूँ. तो फ्रिंज विड्थ अब मैं किसके बीच में निकाल रही हूँ? बिटवीन टू कंसेक्यूटिव dark fringes. So then beta is equal to xn+1 minus xn, which when you will subtract these two, you will get it equal to this only. So ये फॉर्मूला सेम है दोनों के लिए. बस ये याद रखना है कि कंडीशन में मतलब मुझे क्या बोला गया है. मुझे बोला गया है कि 7th डार्क फ्रिंज मिल रहा है या 7th ब्राइट फ्रिंज मिल रहा है. बेसिकली इसमें क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं? इसमें क्वेश्चन बनते हैं कि तुमको या तो xn का वैल्यू दे दिया है, मतलब पोजीशन दे दिया है कि अगर लेट अस गो बैक टू द फिगर. तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि कोई पॉइंट P है तो उसका तुम्हें वैल्यू दे दिया है कि वो ओरिजिन से कितना दूर है स्क्रीन पर. सो व्हाट इज दिस डिस्टेंस एंड दे आर आस्किंग यू कि अगर इस पॉइंट पर ब्राइट फ्रिंज बनना है तो सोर्सेस के बीच सेपरेशन क्या होना चाहिए या डिस्टेंस क्या होना चाहिए, या डिस्टेंस दिया है और सेपरेशन दिया है तो वहां पे कौन सा फ्रिंज बनेगा. इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला पे. या फिर इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं कि दो फ्रिंजेस, फ्रिंज विड्थ अगर इतना है यानी कि बीटा. फ्रिंज विड्थ का क्या मतलब है कि एक मतलब फ्रिंज विड्थ का मतलब है कि अगर ये मेरे पास एक डार्क फ्रिंज है, उसके बाद एक ब्राइट फ्रिंज है और इधर एक डार्क फ्रिंज है, तो फ्रिंज विड्थ दो तरह से सोच सकते हैं कि दो डार्क फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस या एक ब्राइट फ्रिंज का विड्थ. ठीक है, दे मीन द सेम थिंग. तो डार्क फ्रिंज के बीच में एक ब्राइट फ्रिंज है तो या तो उस ब्राइट फ्रिंज का विड्थ क्या है या दो डार्क फ्रिंजेस के बीच में कितना गैप है. दे मीन द सेम थिंग. तो दैट इज व्हाट फ्रिंज विड्थ मींस, द विड्थ ऑफ अ फ्रिंज. सो ये यू कैन कैलकुलेट इन ईदर वेज. तो बेसिकली व्हाट दिस इज टेलिंग मी, क्योंकि फ्रिंज विड्थ सेम आ रहा है चाहे मैं डार्क से कैलकुलेट करूं या फिर मैं ब्राइट फ्रिंज से कैलकुलेट करूं, इसका मतलब है कि सारे जो फ्रिंजेस हैं उनका विड्थ सेम है. दे आर ऑफ द सेम साइजेस. ऐसा नहीं है कि एक बहुत छोटा फ्रिंज है एक बहुत बड़ा है. दे आर ऑफ द सेम साइज. तो इसके बाद दो फॉर्मूलाज और हैं, वो भी कर लेते हैं. एटलीस्ट ये थ्योरी पार्ट इसका खत्म हो जाएगा. तो ये हमने निकाल लिया ये सब. अब लेट अस गो बैक टू द फिगर. एक और चीज हमें देखनी है. तो फिगर में कलर चेंज करते हैं. तो अगर अब हम यहाँ पर देखें तो S1n क्या है? इट्स अ नॉर्मल which I have drawn on S2P. S2P पे मैंने कोई ये नॉर्मल ड्रॉ किया है. पर अब मैं यहाँ से भी let me make one more construction. यहाँ से I also connect one more line to P. तो अब क्या होगा? Roughly this n, this normal is also a normal here. I can take that कि it's roughly it's also 90 degree on this line. तो if I say that क्या बोलूँ इसको, ये वाला जो point है, I am considering this triangle, let us say C. Okay, so this is n dash. So I am considering triangle S1C n dash. Okay, so this triangle I am considering. तो अब ये वाला जो एंगल है, ये I want to figure out ये एंगल क्या है. ठीक है,
एंड ये मैंने कंस्ट्रक्शन CP मैंने कंस्ट्रक्शन क्यों किया, ये जो एक और मैंने डॉटेड लाइन बनाया, ये कंस्ट्रक्शन मैंने इसलिए किया बिकॉज आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन दिस एंगल. वाई एम आई इंटरेस्टेड इन दिस एंगल? क्योंकि ये एंगल क्या है, अगर मैं इसको थीटा बोलूं, लेट मी से दिस इज थीटा एन, तो ये थीटा एन बेसिकली क्या है, दिस इज द एंगल विच दिस, ये जो फ्रिंज बना P पर, जो भी फ्रिंज बना, उस फ्रिंज का एक एंगुलर सेपरेशन दे रहा है मुझे ये थीटा, कि ओरिजिन, ये जो लाइन ओरिजिन तक जा रहा है उससे ये पॉइंट यहाँ P पे कोई फ्रिंज बना, तो दिस एंगल इज बेसिकली टेलिंग मी कि व्हाट इज द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन P एंड द ओरिजिन, मतलब इन टर्म्स ऑफ एंगल कितना दूर मेरा फ्रिंज बना. एक तो मैं फ्रिंज का लोकेशन xn से बता सकती हूँ, कि मैं बता सकती हूँ कि xn, x कोऑर्डिनेट कितना दूर था ओरिजिन से. ओरिजिन में बार बार इसको बोल रही हूँ, दिस इज माय ओरिजिन, जहाँ पे कि मेरा जीरोथ फ्रिंज बना है, सेंट्रल फ्रिंज बना है. ठीक है, सो सेंट्रल फ्रिंज से कितना दूर डिस्टेंस पे फ्रिंज मैं स्टडी करना चाहती हूँ वो xn बता रहा है. बट वही सेम चीज थीटा n भी बता सकता है, बिकॉज थीटा n विल टेल मी द एंगुलर सेपरेशन, कि कितना एंगल वो सबटेंड कर रहा है. ठीक है, सो काफी बार क्वेश्चंस में होता है दैट थीटा n इज गिवन टू यू एंड xn इज नॉट गिवन टू यू. तो ये जो थीटा n है, इसको हम लिख सकते हैं, थीटा n किसके इक्वल हो गया, साइन ऑफ थीटा n इज इक्वल टू PO डिवाइडेड बाय द हाइपर, वही तो आएगा ना, PO डिवाइडेड बाय दिस लेंथ, बट उस लेंथ CP से डिवाइड हो जाएगा, बट CP को हम रफली D के बराबर मान लेंगे, यूजिंग द सेम लॉजिक कि D बहुत बड़ा वैल्यू है और स्मॉल d बहुत छोटा वैल्यू है. तो बेसिकली साइन ऑफ थीटा n क्या होगा, साइन ऑफ थीटा n को मैं लिख सकती हूँ, साइन ऑफ थीटा n को मैं लिख सकती हूँ, कौन सा, PO डिवाइडेड बाय CP लिखना है मुझे. ठीक है, पर CP इज ऑलमोस्ट इक्वल टू D, सो आई विल राइट इट, PO क्या है, PO इज इक्वल टू xn, तो साइन ऑफ थीटा n इज इक्वल टू xn डिवाइडेड बाय D. तो साइन ऑफ थीटा n is equal to xn divided by d. तो काफी बार ये भी हो सकता है that you have to use this formula that xn is equal to d sin theta n. तो this is just a variation of the same formula, ये भी मुझे याद होना चाहिए, this formula, कि rather than telling me small d and lambda, वो सब चीजें मुझे नहीं बताई, लैम्डा भी नहीं बताया, क्वेश्चन में दिया ही नहीं है लैम्डा, क्वेश्चन में स्मॉल d भी नहीं दिया है, बट क्वेश्चन में कहीं से ये थीटा दिया है मुझे, काफी बार दिया होता है कि दिस इज एट दिस इज द एंगल दिस बीम इज सबटेंडिंग, या इस एंगल पे ये बीम फॉल हो रहा है. ठीक है, तो इफ आई कैन फिगर आउट दिस थीटा, तो आई कैन यूज दिस सिंपल फॉर्मूला एंड आई कैन स्टिल फाइंड आउट कि सेवेंथ ब्राइट फ्रिंज कितना दूर बनेगा. ठीक है, स्पेशली कितना सेपरेटेड होगा फ्रॉम द ओरिजिन. तो दिस फॉर्मूला इज यूजफुल इन दैट सेंस. एक और लास्ट फॉर्मूला है जो भी इसी डायग्राम से आना है. तो अब हमें ये पता चल गया कि थीटा n क्या है. ठीक है, थीटा n इज दिस एंगल which this fringe is subtending. This is the angular separation of the nth fringe from the 0th fringe. That is what theta n is telling me. तो अब आई वॉन्ट टू गो टू ये जो छोटा सा ट्राइंगल मैंने बनाया, ट्राइंगल S1CN डैश पे आई वॉन्ट टू गो. ठीक है, तो S1CN डैश ट्राइंगल में आई कैन से कि ये एंगल, ये वाला एंगल तो 90 डिग्री है. ठीक है, और ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज थीटा n. ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये वाला जो एंगल, कौन सा कलर यूज करूं, ये वाला जो एंगल चल ही नहीं रहा, ये वाला जो एंगल बनेगा इधर, बेसिकली एंगल S1CN डैश, ये वाला जो एंगल बनेगा, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा n. समझ आ रहा है, बिकॉज
एंगल S1 CN dash plus angle PCB is equal to 90. In angle PCB क्या है? This is nothing but theta n. So this angle S1 CN dash is equal to 90 minus theta n. So this tells me कि ये वाला जो angle है, this angle is equal to theta n. ठीक है. So अगर ये angle theta n है, मतलब बहुत सारे एंगल्स आ गए, थोड़ा सा मतलब बाद में जाके देखोगे तो समझ आ जाएगा. अगर ये एंगल थीटा एन है तो अब मैं जो डिफरेंस है, बेसिकली आई वांट टू कम टू अनदर फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द सेम थिंग. ठीक है. तो अब ये जो डिस्टेंस, अब जो मैं ये डिफरेंस निकाल रही थी, ये वाला पार्ट डिफरेंस निकाल रही थी, विच वाज S2P माइनस S1P. तो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू नथिंग बट S2N, है ना. अगर मैं फिगर में देखूं तो S2N इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, रफली इक्वल, रफली द डिस्टेंस पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू दिस. तो S2N को मैं क्या लिख सकती हूँ? S2N को बेसिकली कंसिडर द डायग्राम लाइक दिस. यहाँ पे बनाती हूँ. तो अब यहाँ पे मेरा सोर्स है S1, यहाँ पे मेरा सोर्स है S2, और ये N है, and this distance is D. This angle I figured out is theta n. So this distance, what is S2N? S2N is simply equal to D sin theta n. Basically इस वेक्टर का मैंने कंपोनेंट ले लिया. D sin theta n will be equal to S2N. ठीक है. So if D sin theta n is equal to S2N, एंड मैं मैक्सिमा के लिए ही कंसिडर कर रही हूं, तो फॉर मैक्सिमा एट P, S2N शुड बी इक्वल टू n लैम्डा. तो यहां से इक्वेशन आती है दैट D sin थीटा n शुड बी इक्वल टू n लैम्डा, जो कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का भी इक्वेशन है, जो कि हम बाद में भी पढ़ेंगे. तो दिस इज अनदर फॉर्मूला जो कि मैं यूज कर सकती हूँ टू फाइंड आउट थीटा एन और टू फाइंड आउट डी. ठीक है. सो दीज ऑल थिंग्स आर रिलेटेड विथ ईच अदर, दे आर जस्ट वेरिएशन ऑफ द फॉर्मूलाज. तो काफी सारे फॉर्मूला हो गए, बहुत सारे आपने पढ़ भी रखे होंगे, बहुत सारे नहीं भी हो सकता है कि मे बी बहुत टाइम बाद यू आर कमिंग एट दिस. सो थोड़ा सा टाइम लगा के ट्राई टू अंडरस्टैंड द वेरियस थिंग्स. So there are multiple formulas here. ये पर formulas मुझे इतना पता होना चाहिए because Young's double slit is an important topic for us. ये मुझे समझ आना चाहिए कि ये किस तरह से इतनी सारी चीजें मतलब इंटरमिक्स हो गई हैं, कई तरह के formulas आ गए हैं. पहले तो मुझे सिंपल तो ये पता होना चाहिए, how can I find out the position of the nth bright और nth dark fringe. ये तो मुझे पता ही होना चाहिए. और अगर ये फॉर्मूला मुझे याद है दैट xn इज इक्वल टू n लैम्डा d बाई d, तो ऑटोमेटिकली मैं फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला तो निकाल ही सकती हूँ. उसमें तो कुछ भी नहीं करना है, फ्रिंज विड्थ तो डायरेक्टली यहीं से आ रही है. n को बेशक से मैं 1 ही पुट कर दूंगी अगर मैं और भी किसी तरह से याद नहीं रख सकती तो. ठीक है. तो ये फ्रिंज विड्थ तो याद करने का जरूरत नहीं है. यही फॉर्मूला अगर मैं याद कर लूंगी दैट xn इज इक्वल टू मतलब n lambda d by d for bright fringe, तो भी आई एम सेट. डार्क फ्रिंज के लिए मुझे कंडीशन पता होना चाहिए कि n की जगह पे मैं उसको रिप्लेस कर दूंगी 2n plus 1 lambda by 2 से. n lambda की जगह आई विल यूज दिस कंडीशन एंड देन आई कैन फाइंड आउट द nth डार्क फ्रिंज. ठीक है. उसके बाद में एक और ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा कि साइन ऑफ थीटा n जो है वो xn और d के साथ भी रिलेटेड है, और साइन ऑफ थीटा n जो है वो n लैम्डा और d के साथ भी रिलेटेड है. तो अगर मैं इसको बोलूं दैट दिस इज माय इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5, तो एक्चुअली इक्वेशन 4 और 5 यूज करके
आई कैन कम बैक टू द फॉर्मूला ऑफ xn, ठीक है. सो ये सब आपस में ही रिलेटेड है. तो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर द थ्योरी पार्ट ऑफ दिस. उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद में अब नेक्स्ट क्लास में ही हो पाएगा. वी हैव टू स्टडी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस. उस पर भी सवाल आते हैं. तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंज का मतलब क्या हो गया कि अभी मुझे यहाँ पे कोई, मैंने एक्सपेरिमेंट सेट कर लिया, मुझे कुछ फ्रिंजेस मिल गई, पर अब मैं क्या करूँ कि किसी एक पाथ में कोई भी एक रे, या तो S1P या S2P, इनमें से किसी भी एक रे के पाथ में कोई एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का स्लैब डाल दूं, जैसे एक ग्लास स्लैब डाल दूं. तो उससे क्या होगा, अब पाथ जो रे ने ट्रैवल किया वो चेंज हो जाएगा, तो फ्रिंजेस शिफ्ट हो जाएंगी. तो दैट शिफ्ट इन इस पे भी सवाल आते हैं, तो वो हम फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे. आज के लिए वैसे भी बहुत सारा हो गया ये, तो इसी को अच्छे से पढ़ लेंगे तो काफ़ी है. थक गई मैं बोल बोल के. तो आई हैव वन क्वेश्चन. ओके अक्षदा, हैप्पी दिवाली. तो 2-3 लोग ही रहे हैं, तो हैप्पी दिवाली. ठीक है. मानसी हैप्पी दिवाली. अधरीश हैप्पी हैप्पी दिवाली. दिवाली मैम. हैप्पी दिवाली मैम. ठीक है. बाय बाय. गुड नाइट. 9:30 ही हो गए, बहुत टाइम लग गया. गुड नाइट मैम. गुड नाइट.